Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of second year, I hope you all are fine. Dear student, we in previous class we discussed, we had started discussing King Lear, a play by Shakespeare, which is a tragedy, and the tragedy has been written by Shakespeare in 1605. As I told you that the story is about King Lear. King Lear was the king of Britain, and consequences of his wrong decision. Consequences of his wrong decision mean results of his wrong decisions. उसके गलत फैसले के नतीजे में जो नताइज आए, जो रिजल्ट आए, उनके बारे में ये कहानी है, which is a tragedy. Tragedy mean which has a tragic end. इसकी कोई प्लीजिंग एंड नहीं होगी. इसकी क्या होगी? ट्रेजेडी होगी, ट्रेजिक एंड होगी. That's why it's called tragedy. So dear student, we will start explaining the text of the play. So today we will start from the page number. Dear student, open your page number 306, third paragraph. Let me read it for you, student. Dear student, we are short of time and we have to finish the course as soon as possible. So we'll read as much as we can read. So dear student, open your book at page number 306, and I'll read the text for you, and then I'll explain it for you. Now, the king, as I told you that the story was in the, we left the story in the middle there. Now, King Lear asked his, his youngest daughter, Cordelia, and, asked him how much she loves her father. Cordelia's answer was so plain, and she said that, she loves her daughter according to her duty. She neither less nor much. So this plain answer by Cordelia enraged the old monarch, that he in anger banishes and disowns his daughter. Now, as I told you that in the court at this time in the court of King Lear, King of France and Duke of Burgundy were there as a joint suitor for Cordelia. Now, when they come to know that King Lear has disowned, his last daughter, his youngest daughter Cordelia, what was their reaction? Now, let me read. The King of France and Duke of Burgundy were no called to hear the determination of Lear about his youngest daughter, and to know whether they would persist in their courtship to Cordelia, now that she was under her father's displeasure, and had no fortune but her own person to recommend her, and the Duke of Burgundy declined the match, and would not take her as wife upon such condition. But the King of France, understanding what the nature of the fault had been, which had lost her love, which had lost her the love of her father, that it was only a tartness of speech, and not being able to frame her tongue to flattery like her sister, like this young man by the hand, and saying that her virtue were a dowry about a kingdom, bade Cordelia to take farewell to her sisters and her father, though he had been unkind, and she should go with him, and be queen of him and of fair France, and reign over fair possession than her sisters. And he called the Duke of Burgundy in contempt of what wished to, because his love for young man had in a moment run away like water. So in this paragraph, what the writer says, the King of France and the Duke of Burgundy were no call into hear the determination of Lear about his youngest daughter. अब उनको बताया गया, अब दोनों को ये बताया गया कि किंग के डिटर्मिनेशन क्या है, किंग के अज़ाइम क्या है, किंग के इरादे क्या है अबाउट हिज यंगेस्ट डाटर, मीन अपने छोटे, अबाउट कोर्डेलिया. व्हाट वर द डिटर्मिनेशन ऑफ किंग लेयर, अबाउट कोर्डेलिया.
And to know whether they will persist in their courtship to Cordelia mean क्या वो अभी भी साबित कदम है? Persist mean क्या अभी भी अपने बात पे कायम है? Persist mean कायम है, अपनी बात पे अभी भी कायम है, क्या वो कोर्डेलिया से शादी करने के लिए अभी भी तैयार है? Now then she was under her father's displeasure. अब चूंकि कोर्डेलिया जो है वो अपने अब्बू की नाराजगी पर है, यानी अब्बू से नाखुश है। अब उसके अब्बू उसके साथ उसके खुशियों के साथ खुश नहीं है उसका अब्बू। And had no fortune but her own person to recommend her. And there was no fortune for Cordelia. Cordelia का कोई fortune नहीं था, कोई दौलत नहीं थी। Fortune यहाँ का मतलब क्या है? उसके पास यानी कोई दौलत नहीं थी, यानी उसके पास कोई दौलत भी नहीं थी, उसके पास कोई wealth नहीं थी, ठीक है, उसके पास कोई wealth नहीं थी। But herself, but her own person to recommend her. वो सिर्फ अपनी जात पे कायम थी, वो सिर्फ उसकी जात के और उसके पास कुछ नहीं था। And now, and the Duke of Burgundy declined the match. Now, Duke of Burgundy, नवाब जो था, बर्गंडी का नवाब जो था, वो मैच से डिक्लाइन कर लेता है। वो कहता है कि मैं नहीं करने वाला, I'm not going to marry Cordelia, ठीक है। वो उसने कहा कि मैं कोर्डेलिया से शादी करने वाला नहीं हूँ। And would not take her as wife upon such condition. और इन शराइत पर क्योंकि उसके अब्बू से कुछ नहीं देने वाला था। His father has already disowned her. ठीक है, उसके अब्बू her father has already disowned her. उसके अब्बू ने ऑलरेडी उसको डिसओन किया था, उसे यानी अपनी डिस्प्लेजर में उसको कोई हिस्सा नहीं दिया था। उसका जो पार्ट ऑफ किंगडम जो था उसको भी उसके दो सिस्टर्स में क्या किया था, उसको तकसीम किया था। तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी इस कंडीशन पे शादी करने को राजी नहीं था। But the king of France, understanding what the nature of the fault had been, which had lost her the love of her father, यानी ड्यूक ऑफ फ्रांस यानी किंग ऑफ फ्रांस को पता था कि गलती कहाँ पे है, कि गलती किसकी है, और उसको ये भी कसूर किसका था, ये कसूरवार कौन था। ये ड्यूक ऑफ बर्गर यानी कि किंग ऑफ फ्रांस किंग ऑफ फ्रांस knew that who was wrong, गलत कौन था, कसूरवार कौन था, जो यानी ये कसूरवार कौन था कि जिसकी वजह से उसने अपने अब्बू की मोहब्बत जो है अब्बू के दिल में अपनी मोहब्बत खो दिया था। कहते that it was only a tartness of speech. क्या था? It was only tartness of speech. It was only plainness of speech. Tartness mean काहिली, tartness mean सुस्ती, ठीक है, यानी स्पीच की सुस्ती थी, स्पीच की काहिली थी, ठीक है, क्लियर तरीके से फ्रेम नहीं किया गया, फ्लेटरी नहीं की गई, तो उसको ये पता था that it was only a tartness of speech and not been able to frame her tongue like her sister. और वो इस काबिल नहीं हुई थी कि अपने सिस्टर्स की तरह अपनी जुबान को फ्लेटरी कर ले, अपनी जुबान को, अपनी बातों को क्या करे, दिखावे और फ्लेटरी की जुबान में वो बात करे, वो इस काबिल नहीं थी। Took this young man by the hand and sang into ये क्या था, इसी वजह से ये क्या हो गया, ये आड़े हाथों आ गया, यानी इसके पास क्या थे, ऐसे अल्फाज नहीं थे, फ्लेटरी वाले लैंग्वेज नहीं थे। That is why this young man by hand took this young man by hand and saying that her virtue were a dowry about kingdom. अब उसको पता है किंग ऑफ फ्रांस क्या कहता है, तुम्हारा जहेज जो है सल्तनत से भी बड़ी है। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो इखलाक है, तुम्हारी जो नेकी है, तुम्हारी जो वर्चू है, जो कि मेरे लिए क्या है, डॉवरी, एक ऐसी डॉवरी है, एक ऐसा जहेज है जो एक सल्तनत से भी बड़ी है, ठीक है। वर्चू किसे कहा जाता है, वर्चू जो है नेकी को कहा जाता है, वर्चू नेकी इखलाक को भी कहा जाता है, ठीक है। यानी डाउरी किसे कहा जाता है, डाउरी जो है जहेज को कहा जाता है, यानी बेटी को जो जहेज दिया जाता है उसे यानी सामान दिया जाता है, जो कुछ हिस्सा दिया जाता है उसे जहेज कहा जाता है। तो किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि तुम्हारा जो इखलाक है, तुम्हारी जो नेकी है, मुझे एक सल्तनत की जहेज से भी बड़ी है। Okay, bade Cordelia to take farewell of her sister and of her father. Now the king of France, asked Cordelia to say farewell to her sister and her father. Though he had been unkind, अगरचे वो क्या थे, अगरचे वो उनके साथ अच्छे नहीं थे, अगरचे वो उसके जो सिस्टर्स थे और उसका अब्बू जो था वो उसके साथ अच्छे नहीं थे, अनकाइंड थे, बेरहम थे। And she should go with him, और उसे कहा कि आप मेरे साथ चले जाए, फ्रांस चले जाए। And be queen of him and fair of France, और क्या बनूं, यानी अच्छी सल्तनत की, फ्रांस की अच्छी सल्तनत की क्वीन बन जाओ।
and reign over the fairest possession than her sister, और अपनी सिस्टर से बड़ी सल्तनत की क्वीन बन जाओ, और अपनी सिस्टर से बड़ी सल्तनत की क्या बन जाओ, हुक्मरानी करो, वहां पे क्वीन बन जाओ. And he called the Duke of Burgundy in contempt a waterish duke, waterish duke, because his love for young Matt had in a moment run away like water. और किंग ऑफ फ्रांस क्या कहता है, किंग ऑफ फ्रांस इन कंटेम्प्ट, किंग ऑफ फ्रांस इन डिसलाइक. कंटेम्प्ट से कहा जाता है, कंटेम्प्ट मीन डिसलाइक, डिसलाइक मीन हकारत से, हकारत की नजर से. उसने क्या कहा, हकारत की नजर से ड्यूक ऑफ बर्गंडी को उसने क्या किया, वाटरिश ड्यूक, यानी उसे कहा तुम वाटरिश ड्यूक हो. क्यों वाटरिश ड्यूक हो? बिकॉज़ हिज लव फॉर दिस यंग मैन हैड इमोन रन अवे लाइक वाटर, क्योंकि इसकी मोहब्बत थी, इसलिए कोर्डेलिया के लिए जो इसके दिल में मोहब्बत थी वो पानी की तरह क्या हो गई, एक लम्हे में पानी की तरह बह गया. तो कहता है कि तुम वाटरिश किंग, तुम वाटरिश ड्यूक हो, तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम्हारा कोई मेयार नहीं है, वाटरिश ड्यूक. ठीक है, उसे कह दिया. Then Cordelia with weeping eyes took leave of her sister, यानी रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए क्या करती है Cordelia, Cordelia with weeping eyes took leave of her sister and besought them to love their father well. Besought is the second form of beseech. ठीक है, besought is the second form of beseech. beseech का क्या मतलब है, beseech का मतलब इल्तिजा करना, यानी besought का मतलब इल्तिजा किया, मिन्नत किया, रिक्वेस्ट किया. Now Cordelia requested her sisters to love her father well. अपने अब्बू से, यानी उनको रिक्वेस्ट किया कि अब्बू से सही मोहब्बत किया जाए, अच्छी तरह मोहब्बत किया जाए. And make good their profession, और अपने यानी अपने प्रोफेशन का, अपने काम का क्या करे, सही काम करे, और उसे क्या करे, अपने अब्बू से क्या करे, सही मोहब्बत करे और अच्छे अखलाक के साथ उसके साथ क्या करे, पेश आ जाए. And they suddenly told her not to prescribe them. And suddenly mean rude way. Suddenly से कहा जाता है sudden way. Suddenly mean rude way. रूड तरीके से, बड़े गुस्ताखाना तरीके से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोर्डेलिया से कहा, बड़े गुस्ताखाना तरीके से उन्होंने कहा कि आप हमें ना समझाएं, आप हमें नसीहत ना करें, आप हमें प्रिस्क्राइब ना करें. For they knew their duty, वो अपनी ड्यूटी जानते हैं, वो दोनों अपनी ड्यूटी जानती है. But to strive to content her husband who had been her, who had taken her, as they tauntingly express it, as fortune arms, यानी जिस तरह वो क्या करते हैं, but to strive to contempt, लेकिन वो अपने क्या कर रहे थे, वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे her husband, अपने यानी her husband को, अपने शौहर को who had taken her, यानी अब उसमें ये उनकी तरफ से एक आंसर आता है, उसकी सिस्टर की तरफ से एक आंसर आता है. आंसर ये है कि वो लोग कहते हैं they suddenly told यानी Cordelia not to prescribe them, for they knew their duty. इसका मतलब यह है कि उन्होंने बड़े रूड तरीके से, बड़े यानी गुस्ताखाना तरीके से कोर्डेलिया से कहते हैं कि आप हमें प्रिस्क्राइब ना करें, आप हमें ना समझाएं, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी जानते हैं. कोर्डेलिया को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को मुतमईन करे, क्योंकि बड़े तंज में उसे कहते हैं कि तू खैरात के तौर पर तुम्हें लिया है, वो तुम्हें खैरात के तौर पर लिया है. फॉर्चून आर्म्स कहते हैं खैरात को. आर्म्स क्या कहता है, आर्म जो है खैरात को कहा जाता है, यानी खैरात के तौर पर आपके हस्बैंड ने आपको से शादी की है तो आप उसको मुतमईन करने की कोशिश करें. एंड कोर्डेलिया विद हैवी हार्ट डिपार्टेड. कोर्डेलिया क्या करती है, बड़े यानी भारी दिल के साथ, हैवी हार्ट मीन भारी दिल के साथ क्या करती है, डिपार्ट मीन जुदा होती है, चली जाती है. डिपार्ट मीन यानी गो अवे, डिपार्ट मीन गो अवे, चले जाना, दूर चले जाना, उसे जुदा हो जाती है, कोर्डेलिया चली जाती है. For she knew the cunningness of her sister, यानी कोर्डेलिया जानती थी उनकी मक्कारी को, उनकी कनिंगनेस को, उनकी यानी चालाकी को. कनिंगनेस से कहा जाता है, कनिंगनेस मीन चालाकी को, उनकी मक्कारी को, यानी कोर्डेलिया अच्छी तरह जानती थी कि ये अपनी सिस्टर्स की मक्कारी को, चालाकी को. And she wished her father in better hand than she was about to leave him in, यानी वो अपने फादर को भी विश करती है कि अल्लाह तुझे अच्छी हाथों में क्या करे, अल्लाह तेरी अच्छी हाथों में तेरी खिदमत करे, तेरे हाथों में अल्लाह तेरा साथ दे दे, यानी कोई अच्छे हाथों में तुम्हारी परवरिश, यानी तुम्हारा ख्याल हो, तुम्हारा केयर हो, यानी उसको विश करती है. कोर्डेलिया वाज नो सूनर गॉन. अभी कोर्डेलिया गई नहीं थी,
फिर क्या हुआ? Then the devilish disposition of her sister began to show themselves in their true color. यानी उनकी devilish character जो थी, उनकी शैतानी character जो थी, उनकी devilish nature जो थी, वो क्या हो गई? devilish मिजाज जो थी, शैतानी मिजाज जो थी, वो जल्दी क्या करने लगी? शो करने लगी अपने सही कलर में, इन ट्रू कलर. They started to show their true color. वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अपना true color जो है, they started to show their true color. Even before the expiration of first month, which year was to spend by agreement with the eldest daughter, Goneril, the old king began to find out the difference between the promises and performance. Now, एक महीना ही नहीं गुजरा था. It was not a month ago. It was not a month gone. एक महीना भी नहीं गुजरा था. According to agreement, जो कि गोनरिल के साथ रहने वाला था, उसका अब्बू, यानी गोनरिल ने क्या कर दिया? यानी बादशाह को ये महसूस होने लगा कि यार there is a difference between promises and performance. ठीक है, परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस में क्या है डिफरेंस है, वो यानी किंग ऑफ लेयर को किंग लेयर को ये पता चलने लगा. एक महीना नहीं गुजरा था, क्योंकि गोनरिल के जो तरीके थे, गोनरिल के जो गोनरिल का जो सलूक था, उसे देखकर यानी soon the king of लेयर, king of France, king of Britain came to know that there is a difference between promises and performances. Now the wretch having got from her father, having got her father all that he had to bestow, even to the giving away the crown from off his head, began to grudge even those small remnant of royalty which he had, with the old man had reserved for himself. Now the wretch having got from her father all that he bestowed, यानी जो ये बदनसीब जो सिस्टर, जो ये बदनसीब डॉटर जो थे, ठीक है, जो ये रच डॉटर जो थे, रच मीन बदनसीब को कहा जाता है, ठीक है, ये बदकिरदार या बदनसीब, बदकिस्मत कह सकते हो. बदकिस्मत बेटियां जो थी, बदनीयत बेटियां जो थी, इन्होंने क्या किया? जो कुछ अपने अब्बू से ले सकते थे वो सब ले चुके थे, जो कुछ ले सकते थे वो सब ले चुके थे, और क्या करने लगे? Even to giving away the crown from off his head. हालांकि उसके अब्बू ने क्या किया था? He has bestowed the crown even to them. उन्होंने क्या कर दिया? अपना crown भी उनको दिया था, अपना ताज भी उनको दिया था, सारी बादशाहत दी थी. फिर क्या किया? began to grudge even those small remnant of royalty which the old man had reserved for himself. जो छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द किंग जो अपने पास रखे थे, जो छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कुछ नाइट को अपने पास किंग ने रखा था, ये रेमनेंट जो थी, जो बाकियात जो थे, रेमनेंट से कहा जाता है. रेमनेंट मीन बाकियात को कहा जाता है, यानी उसके किंगडम के कुछ बाकियात उसके पास थे, कुछ पावर उसके पास थे रॉयल्टी के. फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू दैट small number of knights and fool and other man. It was the small remnant of royalty. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उसके यानी नुक्स निकालना शुरू कर दिया, उसमें भी ग्रजिंग करना शुरू कर दिया, उसमें भी क्या करना शुरू कर दिया? ग्रज करना शुरू कर दिया. ग्रज मीन नुक्स निकालना, ठीक है, ग्रज मीन यानी नुक्स निकालना. उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया. उन्होंने अब बहाने बनाने शुरू कर दिए. अब क्या करते हैं? To please his fancy with the idea of being still a king. अब बादशाह ने क्या किया था? अपने आप को खुश रखने के लिए उसने सिर्फ बादशाह का नाम अपने पास रखा था, तो उसके बदनसीब या बदनीयत बेटियों ने उसके लिए भी वो ग्रज करना शुरू कर दिया. She could not bear to see him and his 100 knights. अब गोनरिल की ये बात आगे सामने आ गई कि गोनरिल उसके 100 knights को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब कहती है कि every time she met her father, she put on a frowning countenance, and when the old man wanted to speak with her, she would feign sickness or anything to get rid of the sight of him. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? वो जब भी बादशाह से मिलती थी, उसके चेहरे के तासुरात क्या थे? यानी उसके चेहरे के तासुरात अफसुर्दा होते थे. frowning countenance mean यानी अफसुर्दा चेहरा. frowning countenance यानी अफसुर्दा चेहरा. वो जब भी उससे मिलती थी, बादशाह से मिलती थी, अफसुर्दा चेहरे के साथ मिलती थी, और क्या करती थी? और जब कभी बादशाह उससे बात करने की कोशिश करती थी, जब भी बादशाह उससे बोलने की, उससे बात करने की कोशिश करती थी, she would feign sickness to anything get rid of her sight. वो क्या करती थी? बीमारी का बहाना बना देती थी. feign sickness mean यानी झूठ फूट का बहाना, ठीक है. feign यानी वो क्या करती थी? feign sickness
फेन सिकनेस कहते हैं, फेन जो रियल ना हो, फेन सिकनेस बीमारी का बहाना बनाकर, वो क्या करती थी, बीमारी का बहाना बनाकर, वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने यानी फादर की नजरों से दूर जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी। For it was plain that she esteemed his old age as useless burden and his attendance as unnecessary expenses. It was clear that Gonville considered this old man as useless burden, and his knight as useless and unnecessary expense. उसके जो नाइट्स थे, उसके वजीर जो थे, उसके जो मुशीर जो थे, या उसके काम करने वाले खिदमतगार जो थे, उनको क्या समझती थी गवर्नमेंट, अननेसेसरी एक्सपेंस समझती थी, यानी गैर जरूरी अखराजात समझती थी। Not only she herself slackened in her expression of duty to the king, but by self-slackness in her expression of the duty to the king, but by her example, as is to be feared, not without the private instruction, had every servant affected to treat him with neglect, and would either refuse to obey his order, and still more contemptuously pretend to hear, not to hear them. यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ घोंडुल ही अपने अबू के साथ यानी मिसबिहेव नहीं करती थी, बल्कि उसकी गफलत की वजह से, बल्कि उसकी यानी ड्यूटी में स्लेकनेस की वजह से, सुस्ती की वजह से, स्लेकनेस किसे कहा जाता है, सुस्ती को कहा जाता है, उसकी सुस्ती की वजह से, उसकी गफलत की वजह से गोंडुल के सारे नौकर क्या करते थे, वो भी गफलत बरतते थे, अपने काम में गफलत बरतते थे, और इवन ये भी करते थे जब बादशाह उनसे कहता था इट इज टू बी फेयर्ड नॉट विदाउट अ, यानी वो डरते थे, उसके जो नौकर थे वो डरते भी नहीं थे, क्योंकि जब वो क्या करते थे, बादशाह के साथ मिसबिहेव भी करते थे, बादशाह के साथ यानी अच्छे तरीके से पेश भी नहीं आते थे, और बड़े उस अंदाज से अच्छे तरीके से वो नेग्लेक्ट करते थे, इन नजरअंदाज करते थे, किस तरह नजर, एंड वुड ईदर रिफ्यूज टू ओबे हिज ऑर्डर, उसके हुक्म भी नहीं मानते थे, वो क्या करते थे, वो स्टार्ट करना, वो ये हुक्म भी ना मानना शुरू कर दिए थे, और मोर कंटेम्प्चुअसली प्रिटेंड नॉट टू हियर, और बड़ी हकारत से वो क्या करते थे, जाहिर करते थे, कंटेम्प्चुअसली मीन यानी डिसलाइक हुए, कंटेम्प्चुअस मीन हकारत से, डिसलाइकली, ठीक है, हकारत से, यानी वो हकारत से क्या करते थे, यानी प्रिटेंड नॉट टू हियर देम, वो ये जाहिर करते थे कि उन्होंने उसको सुना ही नहीं है, उन्होंने उनको पता ही नहीं चला, वो इस तरह उसको ट्रीट करते थे। लेट कुड नॉट Now, Lear could not but perceive this alteration in the behavior of his daughter. यानी Lear क्या करना शुरू कर दिया था, वो यानी कंसीव करना शुरू कर दिया था, यानी जाहिर यानी समझना शुरू कर दिया था कि अल्टरेशन आई है, there has been change, there is alteration mean change, अल्टरेशन से कहा जाता है, अल्टरेशन अब तब्दीली आ चुकी थी, अब वहाँ पे क्या हुई थी, उसकी बिहेवियर यानी उसकी बेटी की बिहेवियर में तब्दीली आ चुकी थी, एंड behavior, but किंग क्या करता था, but he shut his eyes against it as long as it could, जितना वो कर सकता था नजर बंद कर देता, जितना वो कर सकता था नजरअंदाज करता था, जो कुछ वो समझता था वो सब कुछ नजरअंदाज करता था, and as people commonly unwilling to believe the unpleasant consequences which their own mistake and obstinity have brought upon them, यानी as people commonly are unwillingly to believe, यानी लोगों को यानी लोग नहीं चाहते थे इस बात पे बिलीव करना that the unpleasant consequences, ये नाखुशगवार नताइज जो थे वो क्या थे, which their own mistake, यानी उनकी अपनी गलती जो है, उनकी अपनी गलती ने क्या कर दिया, and obstinacy have brought upon them, यानी क्या किया है, उनकी अपनी गलती जो है, उनकी अपनी गलती की वजह से उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो उनकी बेटियों की तरफ बात करते लोग कहते हैं, लिखता है in the next paragraph, true love and fidelity are no more to be estranged by ill. Estranged means strange करना, estranged. Estranged means strange, ठीक है, strange कर देना, अलग कर देना, you can say that जुदा कर देना, stranger बनना. True love and fidelity, love fidelity से कहा जाता है, faithfulness को fidelity कहा जाता है, fidelity. True love and fidelity are no more to be estranged by ill. Fidelity.
यानी faithfulness. True love and fidelity एक स्टेटमेंट है. True love and fidelity are no more to be instanced by any. यानी इसका मतलब है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी जो है, सच्ची मोहब्बत और वफादारी को यानी बदसलूकी से, इल्वे से, बुरे सलूक से जुदा नहीं किया जा सकता. यानी सच्ची मोहब्बत जब दिल में हो, बुरा सलूक भी हो, तो सच्ची मोहब्बत नहीं चली जाती. And falsehood and hollow-heartedness can be conciliated by good usage. और यानी falsehood जो है, दिखावा जो यानी झूठ मूठ का जो रिश्ता होता है, या hollow-heartedness खोखलापन जो होता है, दिल का खोखलापन जो है, can be conciliated by good usage. अच्छे तरीके से good usage से क्या हो सकता है, उन पे समझौता किया जा सकता है. Conciliated means समझौता करना, ठीक है. Conciliated means समझौता, किसी चीज में रिकन्सिलिएशन करना, समझौता करना, ठीक है. यानी hollow-heartedness और ये झूठ फालतू जो है, इसको अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है, इसको फिल किया जा सकता है, कंसीलिएट किया जा सकता है. बट ये जो ट्रू लव और फिडेलिटी जो है, फेथफुलनेस है, इसको बुरे सलूक और बदसलूकी से जुदा नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता. This eminently appear in the instance of the good Allah King. और ये जो eminently जो है, it means eminently means clearly. Eminently का क्या मतलब है? Clearly. Eminently means clearly. यानी वाज़ेह तौर पर ये क्या हो सकता है, ये जो बात हमने की है क्या है, ट्रू लव जो है, फिडेलिटी की हम बात कर रहे हैं. तो कहते हैं दिस इमिनेंटली अपीयर इन द इंस्टेंस ऑफ गुड आल ऑफ कैन. ये जो आल ऑफ कैन जो था, उसके किरदार से क्या होता है, उसके मामले में ये क्लियर तौर से वाज़ेह होता है. क्या हु दो बैनिश बाय हियर, अगरचे उसको क्या किया था, यानी बैनिश किया गया था, जिलावतन किया गया था. And his life made forfeit, और उसकी जिंदगी को तावान बनाया गया था, उसकी जिंदगी को forfeit समझा गया था, तावान समझा गया था. If he were found in the Britain, बादशाह का यह हुक्म था कि अगरचे 5 दिन के बाद अगर ये सल्तनत बरतानिया में अगर कहीं नजर आया, ये बंदा जो है आल ऑफ कैंट जो है सल्तनत बरतानिया में, if he were found in Britain on the 6th day, should put to death, उसको क्या किया जाए, उसको मारा जाए, उसको किल किया जाए. चूज टू स्टे, यानी उसने क्या कर दिया, इतने बदसलूकी के बावजूद, इतने सख्त अहकामात के बावजूद आल ऑफ कैंट ने क्या कर दिया, चूज टू स्टे, उसने यानी रहना पसंद किया. और क्या कर दिया, एंड अवॉइड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, और तमाम नताइज को बराए ताक रखते हुए, और तमाम नताइज को साइड पे रखते हुए, तमाम नताइज के बावजूद उसने क्या कर दिया, एज लॉन्ग एज देयर वाज अ चांस ऑफ बीइंग यूजफुल टू द किंग, जहां कहीं चांस था, जहां कहीं भी मौका मिलता था बादशाह के लिए यूजफुल होने का, उसने वही रास्ता इख्तियार कर लिया. कहते हैं कि his master, अपने आका का, to see what it means shift and disguise for loyalty is forced to submit sometime. यानी उसने क्या कर दिया, अपने आप को डिस्गाइज कर दिया, अपने आप का रूप बदल दिया, अपने आप को अपने बहरूपी अंदाज में उसने क्या कर दिया, यानी रहना पसंद कर दिया. और इस मुल्क में यानी डिस्गाइज फॉर लॉयल्टी इज फोर्स्ड टू सबमिट समटाइम, यानी उन्होंने क्या कर दिया, गरीब अंदाज में, गुर्बत के अंदाज में अपने आप को डिस्कस किया, यानी डिस्गाइज किया, और लॉयल्टी के अंदर उसने सबमिट हो गए. और क्या हो गए, वहां पे दोबारा चले गए. Yet it comes nothing base and unworthy. Base means shameful, ठीक है. Base से क्या करता है, base means shameful, यानी हकारत. इनको ऐसा काम जो बेस हो, जो मीन हो, जो कम छोटे दर्जे का हो, कहते हैं कि yet it could not, yet it counts nothing base and unworthy, कोई अनवर्ती यानी नहीं था, ठीक है, वो अनवर्ती काम नहीं था. यानी वो जहाँ जो भी चाहता था, वो उसके दिल में मोहब्बत ये थी कि जहाँ भी मौका मिले अपने बादशाह की वो क्या करे, खिदमत करे, यानी मोहब्बत करे, उसको सर्व करे. तो ये काम जो था कोई शेमफुल एक्ट नहीं था. इट वाज नॉट एन अनवर्ती टास्क, कोई अनवर्ती टास्क नहीं था. So as it can, but do serve as where its obligation. वो अपना फर्ज समझकर, वो जिस चीज को अपना फर्ज समझकर उसने क्या करना शुरू कर दिया, सर्व करना शुरू कर दिया. In the disguise of a serving man, किसके तरह के, खिदमतगार आदमी की तरह, खिदमतगार आदमी के रूप में, बहरूपिया अंदाज में उसने क्या कर दिया, and all his greatness and pomp laid aside, अपने तमाम शान शौकत को, अपने तमाम ग्रेटनेस को, तमाम पंप को उसने क्या कर दिया. पंप में पंप कहते हैं ग्रेंजर को,
ग्रेंजर मीन शान शौकत, ठीक है। अपने शान शौकत को उसने क्या कर दिया, साइड पे रख दिया। अपने रॉयल्टी को, अपने ग्रेटनेस को, अपने फॉर्म को उसने साइड पे कर दिया। दिस गुड आर प्रोफर्ड हिज सर्विस, दिस गुड आर प्रोफर्ड हिज सर्विस टू द किंग। उसने क्या कर दिया, अपनी खिदमत जो है किंग को उसने ऑफर कर दिया। प्रोफर्ड मीन ऑफर करना, उसने ऑफर कर दिया। एंड ही ऑफर्ड हिज सर्विस टू द किंग, उसने अपने सर्विस को किंग के लिए क्या कर दिया, यानी पेश किया। Who not knowing him to be candid in the disguise, यानी बादशाह उसे नहीं जानता था कि आल ऑफ कैंट है, क्योंकि वो डिस्गाइज था, अपना रूप बदला हुआ था। बट प्लीज विद अ सर्टेन प्लेननेस एंड रादर ब्लंटनेस, यानी बादशाह क्या हो गया, उससे खुश हो गया। किस वजह से, उसकी सादगी की वजह से, प्लेननेस की वजह से। एंड ब्लंटली, एंड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस मींस साफ गोई को, क्लियर बात को क्या कहा जाता है, वाज़ेह बात, मुंह में बात करने को ब्लंटनेस कहा जाता है। उसकी वजह से बादशाह क्या हो गया, उससे खुश हो गया। ब्लंटनेस इन आंसर व्हिच द अदर पुट ऑन, यानी जिस क्यों किया था उसने, अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में उन्होंने सादगी लाई थी, अपनी जवाबात में उसने सादगी लाई थी, बात करने के तरीके में ब्लंटनेस पैदा किया था। इस वजह से बादशाह को पसंद आया। As a bargain was quickly struck, यानी क्या हो गई, एक बार्गेन जो थी, एक मुनाफा बख्श सौदा जो है जल्दी शुरू हो गया। स्ट्रक मीन शुरू होना, शुरुआत होना, ठीक है, बिगिन, ठीक है, बिगेन। क्या हो गया, एक बार्गेन जो था वो शुरू, बार्गेन मुनाफे बख्श सौदे को कहा जाता है, बार्गेन से कहा जाता है मुनाफे बख्श सौदे को, बार्गेन, मुनाफे बख्श सौदा को बार्गेन कहा जाता है। अब सौदा ये हुआ था कि आल ऑफ कैंट जो था उसने अपने सर्विस को क्या कर दिया, ही ऑफर्ड हिज सर्विस टू द किंग, और किंग जो था उसकी सादगी में, प्लेननेस में, उसकी ब्लंटनेस में उसको पसंद आया। तो ये क्या हो गया, उनके दरमियान बार्गेन शुरू हो गई, मीन सौदा शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। Having found the effect not answerable in his daughter, Lear took Ken into his service by the name of Case, यानी केलियर ने क्या कर दिया, उस सर्वेंट को, आल ऑफ कैंट को केस के नाम से, CAIUS केस, ठीक है, केस नाम से, उसका दूसरा नाम है, आल ऑफ कैंट का दूसरा नाम क्या है, केस है, और बादशाह ने उसको अपनी सर्विस में ले लिया। As he called himself, यानी जो वो अपने आप को केस कहता था, आल ऑफ कैंट जो था अपने आप को केस कहता था, तो उसको अपने सर्विस में ले लिया। Never suspecting him to be once great, never suspecting him to be his once great favorite and high mighty आल ऑफ कैंट, यानी कभी भी बादशाह को ये शक नहीं हुआ, सस्पेक्ट नहीं हुआ, सस्पेक्ट मीन शक, ठीक है, बादशाह को कभी ये शक भी नहीं हुआ कि ये एक वक्त उसका फेवरेट जो था, उसका हाई माइटी आल ऑफ कैंट था, उसे कभी ये शक नहीं हुआ। This case quickly found means to show his fidelity and love to his royal master. जल्द ही इस केस ने क्या कर दिया, इस disguised आल ऑफ कैंट जो था उसने अपनी वफादारी को शो कर दिया, यानी अपनी वफादारी, अपनी फेथफुलनेस जो था, अपनी लव जो था, उसने बादशाह को जाहिर कर दिया। बादशाह को क्या कर दिया, जल्द ही पता चल गया कि ये बंदा जो है बहुत ही फिडालिटी है, बहुत ही रॉयल है, बहुत ही फेथफुल है, बहुत ही वफादार है, बहुत ही लविंग है। For Gonville steward, the same day behaving in disrespectful manner to the rear. एक दिन इसी दिन क्या हो गया था, गोनविल का एक नौकर जो था, एक सर्वेंट जो था, वो he was misbehaving, the King Lear. एक दिन वो क्या कर रहा था, वो किंग लेयर के साथ मिसबिहेव कर रहा था, और गलत अंदाज में, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, बेइज्जती के तरीके से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। And giving him saucy look, और उसे क्या दे रहा था, गुस्ताखाना अंदाज में देख रहा था। saucy look मीन गुस्ताखाना अंदाज, गुस्ताखाना अंदाज में उसका नौकर जो था, गोनविल का स्टीवर्ड जो था, वो क्या देख रहा था, सासे लुक एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी गुस्ताखाना थी, उसकी लैंग्वेज भी, उसकी लुक भी गुस्ताखाना थी। क्या हो गया, as no doubt he was secretly encouraged to do by his mistress, ये बात कोई वो नहीं थी, ये बात कोई छुपी हुई नहीं थी कि उसकी यानी यानी छुपे छुपे क्या कर रही थी, उसकी मिस्ट्रेस जो थी, गोनविल की बात कर रही थी, वो उसको इंकरेज कर रही थी, गोनविल उसको इंकरेज कर रही थी ऐसा काम करने के लिए, उसको हौसला अफजाई कर रही थी, इंकरेज मीन हौसला अफजाई। केस नॉट इन डेयरिंग टू हियर सो ओपन अफ्रंट पुट अपॉन मैजेस्टी, केस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उसके बादशाह को, उसके यानी मास्टर को, उसके आका को इस तरह अफ्रंट करे, मीन इस तरह बेइज्जती करे। अफ्रंट मीन बेइज्जती करना, अफ्रंट मीन
अफरंट मीन बेइज्जती करना, ठीक है। अफरंट का मतलब क्या है? बेइज्जती करना। बात कैसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या कर दिया? मेड नो मोर उडू, ज्यादा कुछ नहीं किया, कैस ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट प्रेजेंटली ट्रिप अप हिज हील, उसको क्या कर दिया? उठा के जमीन पे दे मारा, उसको पांव से उठा के पूरा उठा के जमीन पे दे मारा। एंड लेट द अनमैनरली स्लेव इन कैनन्स, उसने क्या कर दिया? इस अनमैनर स्लेव जो था, इस अनमैनर गुलाम जो था, इस अनमैनर यानी स्टीवर्ड जो था, इस काम को यानी गवर्नमेंट के इस काम को, काम करने वाले को, स्लेव इन द कैनल्स, और उसको कुत्ते की जगह में बदल दिया। कैनल मीन कुत्ते की रहने की जगह, कुत्ते का घर, या आप समझे कैनल जो है यानी कुत्ते की रहने की जगह, ठीक है। कुत्ता जहां पे रहता है उस जगह को क्या कहा जाता है? उसको केनल कहा जाता है। उसको केनल में बंद कर दिया, उसको कुत्ते की जगह पे छोड़ दिया। फॉर विच फ्रेंडली सर्विस देयर बिकेम मोर अटैच्ड टू हिम, इस फ्रेंडली सर्विस की वजह से, इस खिदमत की वजह से क्लियर क्या हो गया? और भी उससे मोहब्बत करने लगा, और भी उसके साथ अटैच हो गया कि केस के साथ। एक्चुअली ही वाज ऑल ऑफ केंट। None was Kent only friend Lear है, ये सिर्फ केंट ही लियर का दोस्त नहीं था, केंट ही सिर्फ लियर का दोस्त नहीं था। इन his degree उसी मकाम पे, as far as so insignificant a personage could show his love, यानी इस हालत में यानी गैर अहम लोग जो थे वो क्या थे? personage could show his love, यानी उसके अपने लिए क्या करता था? उसके लिए अपना मोहब्बत जाहिर करता था। The poor fool, उसमें क्या था? पुअर फूल जो था, उसका जो पुअर फूल था, जस्टर, मजाक करने वाला। ये बादशाहों की एक रिवायत हुआ करती थी पुराने जमाने में। they used to keep a witty person or a fool with him, सीरियस मैटर में वो क्या करते थे? बादशाहों को खुश करते थे। कोई मजाक करते थे, कोई अक्लमंदाना बात करते थे, कोई मजाकिया बात करते थे, तो बादशाह खुश होते थे। That had been of his place when while Lear had a palace, जब लेर की सल्तनत हुआ करती थी, उसकी पैलेस हुआ करती थी, तो ये जस्टिस जो था, ये फूल जो था, वो बादशाह के साथ था, अभी भी है। As it was the custom of the king, great personage, that at the time to keep a fool, as he could call, to make them sport after serious business, क्या करते? serious business के बाद उनको खुश करे। sport मीन खुश करना, ठीक है। स्पोर्ट का मतलब जो है खुश करना, तो इसलिए वो जस्टिस रखते थे, इसलिए वो यानी जोकर रखते थे, या उसको फूल कहते हैं, फूल के भी कह सकते हैं, तो इसलिए रखते थे क्योंकि वो क्या करे? सीरियस मैटर के बाद बादशाहों को खुश करे। दे शुड स्पोर्ट द किंग आफ्टर सीरियस बिजनेस के बाद। दिस पुअर फूल क्लाइम्ब टू Lear आफ्टर ही हैड गिवन अवे हिज थ्रोन, जब बादशाह अपनी तख्त जो थी, अपनी बादशाहत जो थी, अपनी बेटियों में तकसीम कर दिया, तो ये पुअर जो था, ये फूल जो था, ये जस्टिस जो था, ये क्लंग टू द किंग, यानी वो बादशाह के साथ चिपका रहा, उसके साथ रहा। And by his witty saying would keep up his good humor, अपने यानी अक्लमंदाना बातों से, अपने संजीदा बातों से, या अपने मजाहिया बातों से वो क्या करता था? बादशाह का मूड ठीक करता था, उसे खुश रखता था। Though he could not refrain sometimes from jeering at his master, अगरचे वो क्या करता था? वो इस बात से भी बाज नहीं आता। refrain mean to hold back, refrain से कहा जाता है to hold back। क्या मतलब है? टू होल्ड बैक का मतलब बाज रहना, ठीक है। वो इस बात से बाज नहीं रहता था। समटाइम फ्रॉम जेयरिंग इट्स मास्टर, कि अपने यानी क्या कर रहा था? अपने मास्टर का मजाक उड़ाता था। जेयरिंग मीन मॉकिंग, ठीक है। उसका क्या कर रहा था? यानी उसका जेयरिंग भी करता था। जेयरिंग मीन मॉकिंग, वो अपने आका का मजाक भी उड़ाता था। किस तरह मजाक उड़ाता था? फॉर हिज इम्प्रूडेंस, उसकी कमकली की वजह से, बादशाह की कमकली की वजह से, यानी वो क्या करता था? बादशाह के साथ मजाक भी करता था, वो बादशाह को तंग भी करता था, यानी उसको क्या कर रहा था? रिफ्रेन इस बात से बाज भी नहीं जाता था, वो बादशाह को तंग भी करता था उसकी इम्प्रूडेंस की वजह से, उसकी कमकली की वजह से। इम्प्रूडेंस से कहा जाता है कमकली, यानी उसने कमकली का मुजाहिरा किया, प्रूडेंस का नहीं, होशियारी का मुजाहिरा नहीं किया था। तो कहता है कि एन अनक्राउनिंग हिमसेल्फ, इन अनक्राउनिंग हिमसेल्फ, अनक्राउनिंग मीन अपने बादशाहत को दे देना, ताज उतार देने के मामले में। एंड गिविंग अवे ऑल हिज डॉटर टू हिज डॉटर, सब कुछ अपने हाथ यानी बेटियों को देने के मामले में ये फूल क्या करता था? बादशाह का मजाक भी उड़ाता था। At which time as he rhyming express, यानी गजल के अंदाज में, राइमिंग एक्सप्रेस में, राइमिंग तरीके से, यानी पोएट्री के अंदाज में वो क्या करते थे? इस बात को एक्सप्रेस भी करता था। these daughter, यानी अपनी बेटियों के हवाले से वो कहती थी for sudden joy did we, उसके यानी अचानक खुशी जो है उसी के बाद रोना है।
and for her sorrow and he for sorrow sung, और आपने क्या वो गम के लिए गाता था। Then such a king should play Bo Peep। Bo Peep एक गेम होता है, Bo Peep जो है एक गेम होता है। ऐसा गेम जो अक्सर हम भी बच्चे थे तो हम क्या करते थे, खेलते थे, इस तरह अपने हाथों को इस तरह आंखों से वो कर देना और जल्दी इस तरह बच्चों को हंसाया जाता है, इस तरह आंखें बंद करके फिर उसे Bo Peep कहा जाता है कि ऐसा गेम है, ठीक है। And such a king should play Bo Peep and go the fool among। और ऐसे बादशाह क्या करते हैं, ये ऐसा गेम खेलते हैं तो और वो क्या करते हैं, गो द फूल among, और अपने फूल्स के साथ उसके साथ अपने जस्टर के साथ या अपने जोकर के साथ उन्हें जाना पड़ता है। इसको गजल के अंदाज में, गजल के तरीके से, राइमिंग स्कीम के तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता था, ये उसका फूल का काम था। नेक्स्ट पैराग्राफ, and in such wild saying, उस संजीदा यानी सख्त अल्फाज में, and the scrape of song यानी गजल का जो टुकड़ा था, सॉन्ग का जो टुकड़ा था, पीस जो था, of which he had plenty, उसके पास बहुत ज्यादा थे, adequate में अंदाज में थे, काफी मकदार में थे। This pleasant honest fool poured out his heart even in the presence of Gondrel himself, यानी वो क्या करता था, अपने दिल की बड़ास जो थे गोंडल की मौजूदगी में भी निकालता था। ये जो पुअर फूल जो था और ये प्लेजेंट ऑनेस्ट फूल जो था, वफादार देनदार फूल जो था, मजाक करने वाला जो था, ये अपना दिल की बड़ास जो थे गोंडल की मौजूदगी में भी निकालता था। And in very bitter tone and jest, और बड़े काफी तंज अंदाज में, तंजिया अंदाज में और जस्ट और मजाक के अंदाज में, टांग कहते हैं तंज को कहा जाता है, बड़े तंज के अंदाज में वो क्या करता था, तंज के अंदाज में वो क्या करता था और मजाक के अंदाज में, यानी which cut to the quick such as comparing the king to the hedge sparrow, वो क्या करता था, ऐसे अंदाज में बात करता था जैसे कभी कभार वो बादशाह को हेड स्पैरो के साथ, उस परिंदे के साथ, हेड स्पैरो ऐसा परिंदा है, स्पैरो की किस्म है, ठीक है, ये परिंदे की किस्म है। तो ये क्या करता है, who feeds the young of the cuckoo till they all grown up, वो क्या करता है, वैसा स्पैरो है जो कुकू के बच्चों को खाना खिलाता है, जो कुकू के बच्चों को क्या करता है, उनको फीड करता है यहाँ तक कि वो बड़े हो जाते हैं। and then it is had in bit of for it is pain, और फिर क्या करता है, अपना सर जो है अपने परों में छुपा के अपने दर्द में क्या करता है, वक्त गुजारता है। and saying, और कहता they an ass may know when the car draw the earth, इसका मतलब है कि जब then an ass may know, और गधे को इस बात का इल्म होता है, किस बात का इल्म होता है, know when the car draw the earth, जब घोड़े छकड़ा गाड़ी खींचेंगे, कार को खींचेंगे तो गधे को एहसास हो, गधे को पता चल जाएगा। meaning that Lear's daughter that ought to be behind now ran before the king, इसका मतलब ये था कि यानी बादशाह की बेटियों को पीछे होना चाहिए था, बादशाह के पीछे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपनी मकारी की वजह से अब बादशाह से आगे हो गए हैं। and that Lear was no longer Lear, अब बादशाह नहीं रहा, अब Lear नहीं रहा, किंग Lear नहीं रहा, और कहता है कि but the shadow of Lear, वो साया था, वो शेडो था, उसका साया था, for which free speech he was once twice threatened to be wept, यानी उस फ्री स्पीच की वजह से इस फूल को कई बार धमकियां भी दी गई थी, पनिशमेंट की यानी सजा की धमकी भी दी गई थी। वेप मीन पनिशमेंट को कहा जाता है, कि पनिशमेंट की उसको क्या दिया गया था, उसको यानी पनिशमेंट की धमकी भी दी गई थी, थ्रेटन भी किया गया था इस फ्री स्पीच की वजह से। एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ, the coolness and falling of the respect which Lear had begun to pursue, अब क्या हो गया था, उसकी मोहब्बत में, उसके रिस्पेक्ट में कूलिंग शुरू हो गई थी, सरनमोही शुरू हो गई थी, and falling of the respect, और उसकी क्या हो गई थी, falling off of the respect, अब उसकी मोहब्बत में थे, उनकी मोहब्बत में क्या आ गई थी, falling off आ गई थी, यानी उसको समझने लगा था कि Lear were not at all which the foolish found father were not all which this foolish found father was to suffer from his unworthy daughter, अब उसे ये भी पता था ये जो थे अपने foolish father जो था अपनी बेटियों से वो क्या होने वाला था, अब अपने unworthy daughter से वो सफर होने वाला था। She now plainly told him that his staying at the place was inconvenient so long as he insisted upon keeping up an establishment of 100 nights, यानी अब बेटी जो था, गोंडली जो था, वो क्लियर तरीके से आके बादशाह से कहने लगी कि बब्बू आपकी जो यहाँ पे टेरेस में आपकी रिहाई जो है वो मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो गई है,
वो मेरे लिए मुझे मुश्किल हो गया, पेचीदा हो गया है, क्योंकि जब तक आप इस बात पे जिद बजिद रहेंगे, जब आप इंसिस्ट करते रहेंगे कि आप 100 नाइट्स को अपने साथ रखेंगे, 100 यानी नाइट्स को रखेंगे, तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल और पेचीदा हो गया है। And then so long he insisted upon keeping up an establishment of 100 nights. और ये 100 nights की जो establishment जो थी, जो उनके का खिदमतगार जो थे, उनको रखना जहाँ तक रखने की बात है, वो गवर्नमेंट के लिए पेचीदा था। Then this establishment was useless and expensive. यानी गवर्नमेंट कहने लगा कि आपकी जो है establishment है 100 nights की, ये क्या थी? ये कोई ज़रूरी नहीं थी, useless थी, बेकार थी, and expensive और expensive भी था, and only served to fill the court with riots and feasting. कहते हैं कि तुम्हारी जो ये 100 नाइट जो था, ये सिर्फ क्या थी? डिस्टर्बेंस था, रियट था। रियट कहते हैं RIOT, जो रियट जो है डिस्टर्बेंस को कहा जाता है। यानी वो गवर्नमेंट से कहती है कि तुम्हारा जो ये 100 नाइट्स जो थे, एस्टेब्लिशमेंट जो थे, इट इज ओनली रियट एंड फीस्टिंग, और खाना बनाना है उनका, और कुछ नहीं है, या इसमें और कोई काम नहीं है, मील है, ठीक है, सिर्फ उनको खाना देना और डिस्टर्बेंस करना, हल्ला गुल्ला करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड शी प्रेड हिम दैट ही वुड लेसन देयर नंबर, और उससे इल्तिजा की और उससे रिक्वेस्ट की और उसे ये बात क्लियरली उसको बता दिया कि आप उनके तादाद को कम करें। And keep none but old man about him, और क्या करे, किसी को ना रखे, बस सिर्फ 2-3 बूढ़े जो आदमी है, कोई उसके उम्र रसीदा कोई बूढ़े हैं, तो उनको रखो, बाकी सबको क्या करो, निकाल दो। Such as himself fitting his age, ऐसे लोगों को रखो, ऐसे बूढ़े लोगों को रखो जो आपकी एज के साथ बराबर हो, ऐसे लोगों को क्या करो, अपने साथ रखो, और बाकी सबको क्या करो, निकाल दो। It was now the king of Britain, यानी King Lear, come to know that that there is a shift and there is an alteration in Gondal's behavior and respect. He starts to perceive. Dear student, it was enough for today. We'll read the rest in the next class. Thank you so much. Take care.